اکتوبر نومبر میں الیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو اس سال میں الیکشن نہیں ہوں گے، اب الیکشن اگلے سال میں چل جائیں. دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے، اور قطع نظر اس بات سے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم اپنا سر پھینک کے کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ. شہباز شریف صاحب اپنے کام میں لگے رہیں گے، مسلم لیگ نون کی ٹیم جو ہے وہ معیشت کو درست کرنے میں، ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں لگی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. ابھی الیکشن نہیں ہوگا. ایسے نہیں، ایسے مائک ہے نا اس کا، آن ہے جی آن ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ، آپ کو آپ کے والد یا نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا تھا. آپ نے کل شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہو جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ لانگ مارچ کسی طریقے سے کنٹینیو ہوا تو پھر اور بھی ناخوشگوار واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا، عمران خان پشاور میں کس سے قید ہو؟ دیکھیں میں اس میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان کے خطرناک ارادوں کی گورنمنٹ کو فکر ہے. ہمارے پاس انٹیل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلحہ جمع کر کے رکھا ہے، انہوں نے وہ آنسو گیس کے شیل جمع کر کے رکھے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے. میرے پاس انٹیل ہے، میں نے دیکھی ہے وہ انٹیل، وہ حکومت کے پاس ہے، وہ وزارت داخلہ کے پاس ہے. اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا جب جو شہید کانسٹیبل ہیں ان کے سینے پہ گولی ماری گئی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اپنے ورڈز کو منس نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار عمران خان ہے، کیونکہ جس انتشار کو وہ پھیلا رہا ہے اپنی تقریروں سے اس میں یہی ہونا تھا. تو ہاں یہ اپنا لانگ مارچ کر لے، جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے، قانون انشاءاللہ تعالی حرکت میں آئے گا، اور جس نے اس کانسٹیبل کی جان لی ہے اس کو اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ. مریم صاحب، انتظامی معاملات میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی روایت کو دوبارہ جیسے ثاقب نثار کی طرح ایک بار پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکل میں اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اس سوال میں لیجیے گا، کیا اس موقع پر اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر انتظامی معاملات کے اندر مداخلت ہوتی ہے تو 3.5-4 سال کی اب کی اور پہلے کی جمہوریت پسندوں کی وہ کہاں جائے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس کا جواب آئی تھنک دے چکی ہوں اپنی پریسر میں، لیکن میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ روایت نہ ڈالے پاکستان میں کہ اگر کیا جو شخص سب سے بڑھ کر عدلیہ کو گالی دے گا، فوج کو گالی دے گا، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف گالیوں پر مبنی بھری ہوئی غلیظ کیمپینز چلائے گا اور اس طرح سے اداروں پہ پریشر ڈالنے کے لیے پریشر ایگزرٹ کرے گا، تو کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا وہ یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ جو سب سے زیادہ گالی دے گا فیصلے اس کے حق میں آئیں گے؟ تو یہ فیصلہ عدلیہ کو کرنا ہے. میں نے پھر کہوں گی کہ یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں، 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو روکیں، اس فتنے کو، اس شر کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو پھیلنے سے روکیں. اور ہاں، جہاں تک حکومت پاکستان کا سوال ہے تو حکومت پاکستان نہ اداروں کی تذلیل کی اجازت دے گی، نہ وہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی اجازت دے گی، بلکہ ہم ان کو کھل کے ایکسپوز کریں گے اور عوام کے درمیان میں لے کے آئیں گے. جہاں تک آپ نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، تو میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب عبرت کا وہ نشان ہے جس کو ہر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو ان کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کسی فوتگی پہ ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ ملی. میرے لیے ان خاتون کا بہت احترام ہے دل میں. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے یہ کچھ
3-4 महीने पहले की बात है। तो वो मेरे पास आई, बैठी, अच्छी खातून है, नेक खातून है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो साहब फौत हुए हैं ये साकिब निसार साहब के क्लास फेलो थे, लेकिन आज मैं आई हूँ क्योंकि आपको तो पता है ना वो इस तरह से नहीं आ सकते, देयर बाय मीनिंग कि वो पब्लिक में नहीं आ सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अंजाम काफ़ी है। जब आप प्रेशर में आके फ़ैसले करते हैं तो उसका ये अंजाम होता है। तो साकिब निसार साहब इबरत का जो है तस्वीर है, और वो पाकिस्तान की अदलिया की अदल की सिमत दुरुस्त करने के लिए अगर हमें कोई एक तस्वीर देखना है तो वो साकिब निसार साहब। मरियम, आज आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके पीछे गैर मुल्की फंडिंग भी है और कुछ गैर मुल्की लोग भी हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब जब आपको सजाएं हुई और उस हवाले से कुछ लोगों ने मिट्टी के निशान भी बनाए, आज वो खुद कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम के साथ हुआ, वो गलत हुआ और उस पर वो माफी भी मांग रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप कि वो तरीक को दुरुस्त करें, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि सच को एक दिन सामने आना होता है। और मैंने कल, आप मोहित पीरज़ादा साहब की बात कर रहे हैं ना, तो मैं नाम ले देती हूँ। मोहित पीरज़ादा साहब ने ये बात की, तो क्या जो मोहित पीरज़ादा साहब ने बात की, मुझे उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं है? 22 करोड़ आवाम को उनकी गवाही की ज़रूरत नहीं। अच्छा है, उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो इस्तेमाल हुए हैं, वो उनसे कोई गलती सरजद हो गई, अच्छी बात है, इकरार करना अच्छी बात है, लेकिन उस इकरार की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने, 22 करोड़ आवाम ने जो सबूत पिछले 5-6 साल में विक्टिमाइजेशन की, बदतरीन विक्टिमाइजेशन के देखे हैं, उसके लिए उनको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। 22 करोड़ आवाम इसके गवाह हैं और सब बोलेंगे। एक दिन इमरान खान खुद बोलेगा कि वो भी इस्तेमाल हुआ है, उसने भी गलत किया है। आज अगर जब वो कहते हैं कि पूरी काबीना जो है वो ज़मानतों पे है, तो वो ये बात क्यों करते हैं? उसका जवाब ये है कि पूरी काबीना ज़मानतों पे इसलिए नहीं है कि काबीना ने कोई कसूर किया था या काबीना ने कोई जुर्म किया था। वो ज़मानतों पे इसलिए है कि तुमने, इमरान खान, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे। तुमने FIA के उस वक्त के सरबराह को, बशीर मेमन को कहा था, ऑफिस में बुलाकर, प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस्तेमाल करके तुमने कहा शहबाज शरीफ को पकड़ो, मरियम नवाज को पकड़ो, किसको पकड़ो, काजी ईसा को पकड़ो। तो इमरान खान भी बोलना शुरू हो गया है और एक दिन वो बोलेगा। काजी फाइज ईसा को तो कह दिया ना, मुझसे गलती हुई, मुझसे करवाया गया, या जो भी कह दिया, तो सब बोलेंगे। सच को एक ना एक दिन सामने आना है। और काबीना आज इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे इंतकाम को उन्होंने मर्दाना वार फेस किया। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने वो डाली और आज अल्लाह ताला का करना देखो। वही राना सनाउल्लाह जो है, मैं ये भी बता दूं कि तुम लोगों को राना सनाउल्लाह बुरा लगता है ना, सही बुरा लगता है। राना सनाउल्लाह जो है उसको अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करनी आती है। तो ज़रा घर से बाहर निकलते हुए सोच लेना, अगर इंतशार का एजेंडा है, अगर खून खराबे का एजेंडा है, तो फिर इस मुल्क का वजीर दाखिला, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। अर्सलान, एक मिनट तरफ यहाँ से हो गया ना, प्लीज ऐसे नहीं, डोंट डू इट तरफ, डोंट डू इट। आप आ रही हूँ आपके पास, पहले उधर से आने दीजिए। हमने जब फिक्स किया है कि एक इधर से एक उधर से, देखिए एक सेकंड, डोंट डू इट। मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि अपनी बात करके भाग जाओ, मैं सबके सवाल लूंगी आहिस्ता। वो सीनियर भी है। अज़मा को जरा कंडक्ट करने दें। जी, पंजाब के अंदर बहुत सारा आईनी, कानूनी और सियासी बहरान है। गवर्नर हाउस में गवर्नर नहीं है, वज़ीर आला के पास काबीना नहीं है। क्या ये वही लोग जिम्मेदार हैं? तो इसमें सिर्फ नुकसान जो है वो पंजाब की आवाम का हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है, खुसूसन गंदम के हवाले से पानी का मसला भी चल रहा है। क्या आप समझते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इंतशार की सियासत की है, और क्या वही लोग हैं जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि पंजाब में जो इन्होंने फरागोगी और बुज़दार के ज़रिए लूट मार की है ना, तो इनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब को किसी तरह खुलने ना दें, PMLN के हाथ में ना जाने दें, क्योंकि सबूत जो इनके खिलाफ है वो होशरुबा है। दूसरी बात ये कि अगर
गवर्नर जो इस वक्त बन के बैठा हुआ है, अगर वो आइन और कानून को अपने पाँव के नीचे रोनता है तो फिर उस गवर्नर को गवर्नर हाउस में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए। किसी को पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम की तकदीर से खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब काबीना नहीं है तो उसका जिम्मेदार ये आइन शिकन गिरोह है जो अब पाकिस्तान पे हमला आवर है। तो आइन शिकनों के साथ, फितने बाजों के साथ प्यार मोहब्बत और आइन और कानून वाला सलूक नहीं करना चाहिए। इनको इनके घरों में घुस के गिरफ्तार करना चाहिए और पाकिस्तान और पंजाब के अवाम को इनकी जो नेफेरियस डिजाइन है उनसे बचाना चाहिए। जी ये बताइएगा कि आप हमेशा जमहूरी अमल की बात करती रही हैं, अभी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थी कि जब ये क्रैकडाउन हो रहा था तो आप लोगों के क्लास में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो उसके हामी नहीं थे, क्या इस चीज़ की आप तस्दीक कर सकती है? दूसरा ये बताइएगा कि एक सवाल पहले, एक सवाल, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उनको अपनी जिम्मेदारियों का अंदाज़ा है, उनको ये पता है कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे ज़्यादा इंटेल और इन्फॉर्मेशन भी शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने गलत बताया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये पता है कि 22 करोड़ के अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर है। उनको ये पता है कि अगर अवाम के लिए रास्ते बंद किए जाएंगे, इंतशार फैलाया जाएगा, खून होगा, ये वाला जो इंतशार की खेल है वो खेला जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी जिम्मेदारी है उसको रोकना। और आज जो कांस्टेबल का खून हुआ है वो हम सबको ये इशारे मिल रहे थे। आपको मैंने अभी जो वीडियोस और दिखाई हैं, जो ट्वीट्स हैं इनकी, आप पढ़ लें तो वो शहबाज शरीफ साहब को पता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाएंगे, पूरी कुव्वत से इस फितने को इंशाल्लाह रोकेंगे। जी उसमें सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, पूरी पंजाब की हुकूमत, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून के एलाइज, मीडिया, तमाम इदारों को एक ही पेज पर होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। एक मिनट, आप एक सियासतदान हैं और कोई मीडिया जो है वो पता सुनाई नहीं करता, मीडिया जो तनकीद है वो करता है। क्या नून लीग की जो बर्दाश्त है वो खत्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल नून लीग ने तो ARY को कब से बर्दाश्त कर रही है, लेकिन मैं ARY को माइक इसलिए नहीं उठवाया कि ARY के मैं सवाल नहीं ले सकती। मैंने तो आपको खड़ा करके आपका सवाल लिया है। ARY का मैंने माइक इसलिए उठाया है कि ARY गोल्ड स्मगलर्स है। ARY का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने 12 अरब रुपए का टैक्स माफ कराया है और उस पर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। ARY का माइक मैंने इसलिए उठाया है कि उन्होंने इमरान खान से क्रिकेट राइट्स लिए हुए हैं, फायदे लिए हुए हैं। उन्होंने इमरान खान से 40 अरब रुपए का फायदा लिया हुआ है और फिर वो फायदा लेकर आज वो इदारों पर हमला आवर है। आप ARY के ऊपर से लेके नीचे तक सारे एंकर्स को देख लें, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, इदारों के सिपा सलार पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। ARY का नहीं, ARY को मेरे सामने बिठा दे, मैं ARY को अभी बता दूंगी कि ARY की हैसियत क्या है, इसलिए मैंने माइक उठाया है। बारी 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 आपने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये आपके खिलाफ नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है ये मादी के सिलेक्टेड भी हैं। अभी आपने जिक्र भी कर दिया कि ARY के जो जितने भी एंकर हैं उसके पास ला के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मादी में आपने तमाम जलसों में, तमाम प्लेटफॉर्म पर इसी सिपा सलार को का निशाना बनाया था। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आपने के खिलाफ जिद्दोजहद की, इमरान खान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद करके अपने मुकाबले हासिल कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, मकासद में भी फ़र्क है, जिद्दोजहद में भी फ़र्क है, तनकीद में भी फ़र्क है। तनकीद ये थी कि इदारे अपने दायरा कार में रहें और मदाखलत ना करें। तो ये तनकीद तो कोई भी मुहब्ब वतन करेगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें भी करेंगी, जमहूरियत पर पसंद हर इंसान करेगा, 22 करोड़ अवाम भी करें। और अगर इमरान खान की तनकीद क्या है, इमरान खान की तनकीद ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, मुझे बचा क्यों नहीं रहे, मेरी हुकूमत में मुझे दोबारा क्यों नहीं लेके आ रहे, मेरी हुकूमत को क्यों नहीं बचाया। मेरे लोग जब मुझे छोड़ के जा रहे थे और MPs MNAs जब मुझे छोड़ के जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती इदारों की ताकत को यूज़ करके उनको वापस क्यों नहीं लाया, और क्यों सियासत में मदाखलत नहीं करे, क्यों मुझे लाडला नहीं दोबारा से बना रहे, क्यों मेरा साथ उस तरह नहीं दे रहे, क्यों मेरी आंखें और कान नहीं बन रहे और मेरे हाथ नहीं बन रहे।
क्यों आप न्यूट्रल हो गए, क्यों आप अपने हल्फ पे वापस चले गए? तो इन दो चीज़ों की पहले आप डिस्क्रिमिनेट इनको कर लें, तो फिर तनकीद कौन सी जायज़ है, कौन सी तनकीद सिर्फ अपने लिए हो रही है, उसको भी देख लें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी, एक मिनट, एक और भी क्वेश्चन आपने किया, वो क्या था? मेरा यही था कि इदारों पर तनकीद अब उनकी बात, अब एक जी। इधर से आ लेने दें प्लीज। जी जी मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि इमरान खान जो है उनके जो दर्शन जुलूस हो रहे हैं उस पर फॉरेन फंडिंग और कुछ बाहर से पैसे आ रहे हैं, अब आपकी गवर्नमेंट है पंजाब में भी और वफाक में भी, तो तहकीकात क्यों नहीं करवाती हैं आप? तो आपका क्या ख्याल है कि तहकीकात नहीं हो रही? और आपका, एक मिनट, आपका क्या ख्याल है कि जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात है क्या वो ईसीपी नहीं कर रही? तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ईसीपी को क्यों अटैक कर रहे हैं? इमरान खान साहब ईसीपी को अटैक ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईसीपी फॉरेन फंडिंग के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जमा कर चुकी। तो तहकीकात भी होंगी, उसके नताइज भी आएंगे और वो कौम के सामने रखे भी जाएंगे। जी सीनियर है, प्लीज प्लीज बेटा, सीनियर है, चलो बोलो प्लीज, सीनियर है, ये सीनियर है जावेद आरिफ, सीनियर है, सीनियर है। जैसा से आप जो इदारों को भी डिफेंड किया है आपने, इनके खिलाफ जो कुछ लोग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपने डिफेंड कर रहे हैं। माजी के बारे में आपका समाधान बता रहा है कि दूसरों की इग्नोर और इदारों के दरमियान अब ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं, और जिसे कहा जाता है कि सेम पेज पर तकरीबन आ गए, क्या आप सेम पेज पर आ गए हैं? दूसरी एक नहायत एहतराम के साथ कि एआरवाई के इशू पे आपसे हम ये फोटो करते हैं कि आप हमारे मुल्क की एक मॉडरेट लीडरशिप है, हमें ये फख्र है। हम फोटो करते हैं कि मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदाना सियासत हो रही है, इमरान खान ने खुद मेरा इख्तलाफ ये है कि मुल्क के अंदर इंतहा पसंदाना रवैयों को वो प्रमोट करें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम इस रवैये से थोड़ा सा अलग हों और ज्यादा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ज्यादा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एआरवाई के जराइम पे पर्दा डाल दूं? नहीं, आप बात करें अपनी, नहीं 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 बात नहीं, करें। देखिए मेरा बड़ा दिल का मतलब ये नहीं है, मेरे पे तनकीद, एक सेकंड प्लीज बात सुन ले, मेरे पे तनकीद जायज है और जो एआरवाई दिन रात करता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने इमरान खान से पाकिस्तान की कौम का पैसा खाया है और उसके नतीजे में आप इंतशार में शामिल हो रहे हैं तो उसकी इजाजत मैं नहीं दे सकती। दूसरी बात आपने कही, क्या बात आपने एक और, देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी इस चीज का जवाब दे दिया कि अगर कोई किसी ने ये फैसला इदारों ने कर लिया है कि आइन का साथ देना है, कानून का साथ देना है, किसी एक शख्स का साथ नहीं देना, इमरान खान का साथ नहीं देना, जो अवाम फैसला करेगी उसको तस्लीम किया जाएगा, सियासी मैदान में मदाखलत नहीं की जाएगी, तो इसको मैं बतौर जमहूरियत पसंद, जिसने फाइट किया है, जिसने जेलें काटी हैं, जिसने तकलीफ बर्दाश्त की है, उसके लिए मैं उसको वेलकम करती हूँ। तो मैम गुजारिश ये है कि 4 साल आपके साथ के साथ जो कुछ हुआ, अब वो लोगों के साथ है, इस तरह आपको आपके साथ बाकी सवाल कर लेना। अगर दोनों पार्टी से दरमियान अगर तो ना जाने कितने कमाल है वो इसके आप क्या समझते हैं, क्या एक सेकंड ये है being a president of Punjab University, हमारी कोशिश ये है कि जो freedom of press है, right of expression जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए। हम ये जरूर आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो फिलहाल वाई में भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी लोग आपको देखना चाहते हैं। इसका आप ये इसको कोई इसका किया जाए कि कोई इंडिविजुअल है कि आप कोई सेटलमेंट करें, सब जर्नलिस्ट। ठीक है, सुन लिया मैंने जी। आप आखिरी क्वेश्चन प्लीज। जी उस्मान, एक सेकंड प्लीज जी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मियाँ साहब हमारे दरमियान होंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत के रास्ते में रुकावटें ना पैदा की गई
तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत डिलीवर करेगी। आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान की न सिर्फ सिमत दुरुस्त करेगी, बहरानों से निकाल के ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे वापस डालेगी। बहुत शुक्रिया।